Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So in today's class, we will be going to discuss some of the important questions in our polity section. So without any further ado, let's start our today's session. The very first question, Article 1 states India as Bharat, which is a union of states and union territories. So it is indeed incorrect statement. Why? Because India, that is Bharat, is a union of states. The second option is the expression of Union of India is wider in extent than the expression territory of India. So it is indeed incorrect statement. We all know. Article 1 says that India, that is Bharat, is equal to Union of States. The territory of India will include the territory of states, the UTs, or the territories that will be acquired in future course of actions. So thus territory of India is wider term than the Union of States or Union of India. So we have to mark the incorrect. So both are incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग DPSPs. अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, इनका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. वाई? बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर ऑल द DPSPs विच आर इनकलकेटेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट. और ये याद करना प्रायर टू अवर होल सिलेबस इज़ वेरी मुश्किल, और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कुछ खास ज़्यादा है नहीं. तो देखो, मैं तो याद नहीं करता, पर मैं बस देख के चले आता हूँ कि जो बहुत ही जैसे तगड़ी है ना, जैसे ये है 39A, ये मुझे अच्छी तरह याद है और ये 42nd में आई थी, तो ऐसे तो मैं मार्क कर दूंगा. बट टू मिनिमाइज इनक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये जो है, देन टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो जो ऐसी चीज़ें हैं ना, तो ये मैं कोई याद नहीं करता ज़्यादा. आपकी मर्ज़ी है. DPSPs आपके लक्ष्मीकांत में पढ़ी है. रीड दोज DPSP एंड मार्क द करेक्ट आंसर. A question regarding Article 21. If it is violated by the state, there is an explicit provision in the Constitution for grant of compensation by the state. ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ compensation लिखी नहीं हुई है. But yeah, if your fundamental rights are getting violated, so you can approach Supreme Court via Article 32 और कितना था, 228 था, 226 था, ऐसे ही था कुछ इन हाई कोर्ट्स. तो एक बार आप ये देख लेना, थोड़ा सा भूल गया मैं. द प्रोटेक्शन under it can be available only against arbitrary executive action and not against the arbitrary legislative action. So yes, if you are talking about the language written in Article 21, it is written that procedure established by law, and this procedure established by law we have taken from UK. Now, under this procedure established by law, if a citizen or a person has committed an action which is violative of Article 21, sorry, not violative of Article 21, but violative of a statute, then yes, he will be given the punishment. But suppose in a parallel case scenario, the law which has been enacted by the parliament, like the Rowlatt Act. Now accordingly, this Rowlatt Act is not as per the legislative wisdom of that period of time, but this Rowlatt Act has been legislated by the Central Legislative Assembly. So hence it is a legal law. Now a person is violating this law, he should be punished and he should be sentenced to jail. So that's why this procedure established by law will provide protection against only arbitrary executive action and not against legislative action. Understood? But in the Menka Gandhi case of 1978, Supreme Court has recognized the expression due process of law under Article 21. So this particular due process of law has been taken from USA. और इसमें क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विल आइसोलेट a person from the arbitrary action of both the legislative body as well as executive body, whereas in the procedure established by law, the law will protect or isolate only from the arbitrary action of executive and
not against legislative action. So only 2 are correct. इंडियन जुडिशरी के बारे में पूछा गया है भाई. अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट. इट इज़ इंडीड करेक्ट. अभी कितनी है? शायद से 33 है. द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट्स कैन बी इंक्रीज बाय द प्रेजिडेंट. तो इसी में कंफ्यूज होते हैं. इन दोनों को अच्छे से याद रखना. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर हम बोलें कि इंडिया इज़ अ प्योरली फेडरल कंट्री, नो इट इज़ नॉट प्योरली फेडरल. वाई? बिकॉज येस, everything we have divided into 2 levels of administration, the state and the central level, but our judiciary is integrated and hierarchically organized. So remember this contradiction. तो जुडिशरी हमारे पास एक ही है. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे 24 या 25 आई थिंक हाई कोर्ट है, उनके नीचे रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं. सो दिस इज हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनिकली लिंक्ड. और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बहुत कुछ ऐसा, तो जैसे आर्टिकल 32 एंड 226 ये याद आ गया मेरे को. तो इसमें हम रिट्स इशू करती है, ऑर्डर देती है, इसके अंडर 32 और 226 के अंदर हाई कोर्ट. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, ये भी याद रखना. हाई कोर्ट के पास ऐसा कुछ नहीं होता है. तो अभी तो आंसर 2 है. With reference to the Constitution of India, consider the following statements. The Indian Constitution seeks to impart more flexibility to a written federal constitution than the Constitution of the USA, and is indeed correct, because USA is purely federal as per their view, and India is federal as per our view. But for the foreign or Western scholars, India is quasi-federal. Some provisions in the Constitution of India can only be amended with the ratification of 2/3 of the state legislature with the special majority. दोनों चीज़ें गलत लिखी है. सबसे पहले तो हाफ ऑफ द स्टेट्स, और दूसरी बात बाय सिंपल मेजोरिटी विद इन अ टाइम पीरियड. नो टाइम पीरियड इज गिवन. सो 1 ओनली इज करेक्ट. और ये सिंपल मेजोरिटी क्या कौन सी होती है? देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी. 368 के अंदर 2 लिखी हुई है. स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इफ देयर इज़ अ अमेंडमेंट इन द फेडरल प्रोविजंस. अंडरस्टूड? तो इसमें हमारे पास कौन से हैं? जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स हैं, देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन शेड्यूल 4 एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ. तो ये सारी चीज़ें ये फेडरल प्रोविजंस है. अंडरस्टूड? स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. अंडरस्टूड? और 368 के बाहर हमारे पास है सिंपल मेजॉरिटी. सो दिस इज नॉट रिटर्न अंडर आर्टिकल 368. तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग. इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है भाई? मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग माइनस वैकेंसीज. तो वैकेंसीज को उसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास इफेक्टिव मेजॉरिटी आ जाती है. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मैंने आपको बता दिया, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ मेजॉरिटी. 368 के अंदर 2 ही हैं, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स. थियोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा पूछा गया. क्या है? Religious principles often guide political decision making. Yes. State generally supports and promotes a particular religion. Yes. Freedom of religion is guaranteed. Freedom of religion of a particular denomination is only guaranteed. अगर मान लीजिए X वाली थियोक्रेसी है और Y रिलीजन वहाँ रह रहा है, तो Y के लिए कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है. X के लिए तो चलो कितना भी कर लो. अंडरस्टूड? सो ओनली 2 आर करेक्ट. 8th, सेशंस जज के बारे में बोला है. द डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन हियरिंग अ क्रिमिनल केस इज नोन एज सेशन जज. इट इज इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट. द सेशंस जज कैन सेंटेंस अ पर्सन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. येस, बट कैन नॉट अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस. नो, इट कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस ऑल्सो प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सर्टिफाइज इट. सो इन इंडियन केस
any layer or any level of judiciary can award the death sentence provided it has been certified by the high court. So only one is correct. कुछ अमेंडमेंट्स एंड उनके इंपॉर्टेंट चेंजेस दिए हैं. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में मेड द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल, नहीं यार कहाँ से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 मेड दिस लीगल राइट. जो आर्टिकल 31 में थी, 31 में थी ना, और 31 में थी, उसको 300A में डाल दिया. शायद से पार्ट 12 है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, देख लेना एक बार. 52nd अमेंडमेंट एक्ट ADL के बारे में लिखा है क्या, ADL एंटी डिफेक्शन लॉ, यस डिफेक्शन लिखा है, सही है, ये इनकरेक्ट है. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या आए थे, देखिए आर्टिकल 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर वो डाली गई थी. देन फर्स्ट अमेंडमेंट में 31A एंड 31B इंस्टिल किए हुए थे. और क्या थे, और एक 25th अमेंडमेंट थी, उसमें 31C भी आ गया था. ये सब थे. 100th अमेंडमेंट में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश. 101 फेमस GST. 102 NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज़ बिन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. 103 रिगार्डिंग EWS 10% का इन द एजुकेशनल एज वेल एज जॉब में. देन 104 में क्या हुआ था भाई, EWS के पास वो कुछ रिजर्वेशन कैंसिल हो गई थी ना एंग्लो इंडियंस की, और SC ST की बढ़ गई थी, मतलब उनके लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया था और एंग्लो इंडियन की कैंसिल हो गई थी. फिर आता है हमारे पास 105. इसमें जो पावर्स है ना, जैसे NCBC आ गया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ना ऐसे इंटरप्रेट कर दिया था इस 102 अमेंडमेंट को कि नाउ स्टेट्स डोंट हैव द पावर टू रिकॉग्नाइज द SCs एंड STs इन द स्टेट. So central government has enacted this 105th Amendment Act to restore these powers of the state government. Understood? और 106 में हम सबको अभी पता है वुमन रिजर्वेशन. सो एज यूजुअल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, पर कोई नहीं, वापस लाइन पे आ गए हम. सो दिस इज़ इनकरेक्ट, मैंने बता दिया था, इसके बारे में बता दिया था. फिर मैं आपको वो बता रहा था, तो 105 महिला अधिनियम बिल ऐसे करके कुछ है, वो देख लेना. दिस इज़ करेक्ट. एंड 91st दिस इज़ correct, sorry, this is correct. Stipulated the upper limit of council of minister at center level. तो सेंटर लेवल में हमारे पास कितने हैं, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और स्टेट पे कितने हैं 15%, और आई थिंक 12 से कम नहीं होनी चाहिए, और 15% ये है. तो 15% तो मुझे पता है, और ये देख लेना एट सेंटर लेवल देयर इज़ नो लोअर लिमिट, तो ये अपने अच्छे से ध्यान रखना. तो हमारे पास 3 सही हो गए. हाँ सही है. हमारे पास कुछ पर्सनैलिटी हैं और उनके रोल क्या है. HVR अयंगर वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. SN मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन. सर BN राव, बेनेगल नामा राव, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड ऑल्सो ही इज़ द सेम BN राव हु वाज द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. प्रेम बिहारी रायजादा, कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ओनली 2 आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेन्यूमरेशन ऑफ द जजेस इन इंडिया. तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं लोग, पर इसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन हट जाएगी. द सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. द सैलरीज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट. तो सैलरी यस, बट द पेंशंस नो. So the pension of the High Court judges will be charged from Consolidated Fund of India, but yes, their salaries on the Consolidated Fund of States. So that's for all today. Hope so आपके नॉलेज में थोड़ी वृद्धि हो रही होगी ये सारी सीरीज़ को देख के. प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.